Morning students. Today in this video we will discuss the Pythagoras theorem. You already know about this and in this video you will know how to prove the Pythagoras theorem, and other theorems are basically related to this theorem, right? So observe this video and solve the upcoming exercise with the help of these theorems, right? Thank you. Hello, good morning students. Theorem 6.8, that is according to our textbook, and this theorem is also called the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem और बोधायन Pythagoras theorem, right? तो ये पहले भी आपने पढ़ चुके होंगे अर्लियर क्लासेस में, बट इसको हम प्रूव यहाँ इस वाली क्लास में करेंगे. तो ये जो बोधायन Pythagoras theorem है वो इस ढंग से स्टेट करती है: in a right triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides, right? That means अगर हमें प्रूव करना है तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये एक ABC एक ट्रायंगल है जो B पर क्या है, राइट एंगल्ड है, राइट? B इज राइट एंगल. सो ये राइट ट्रायंगल है और इसका हाइपोटेनस क्या हो गया, AC हो गया. तो हमें ये प्रूव करना है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, राइट? तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमें जो प्रूव करना है दैट इज AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. नाउ कंस्ट्रक्शंस. नाउ फॉर दिस वी हैव टू ड्रॉ BD perpendicular to AC, right? Now in triangle, now we have divided the whole triangle ABC into two parts, ADB and CDB, right? Here at the point D, both triangles are right angle triangle, right? Now in triangle, now first of all we go through this angle ADB and whole ABC. Both are right angle triangle. Now in triangle ADB and ABC and ADB, right? Now both triangles are similar because by previous theorem हमने पहले भी theorem में हमने उस प्रूव किया था कि if right triangle having the perpendicular from right angle, then the triangles so formed are similar to each other and the whole, right? So this is ADB is similar to ABC, right? Now by BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम इसके क्या कर देंगे, AD. अगर हमने इसको सेपरेटली भी बना दिया है कि ADB एंड ABC, राइट? इसको हमने इसी को इधर पलट दिया है ताकि हम इसको राइट एंगल और A, क्योंकि दोनों ADB और ABC में बहुत ये एंगल क्या है, A क्या है, कॉमन है. सो हमने यहाँ पर ये कॉमन एंगल, दोनों का कॉमन एंगल हो गया, राइट? तो बाय BPT हमने इसके रेशियो ऑफ दी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगी. सो AD अपॉन AB, राइट? एंड AB अपॉन AC, राइट? इस तरह से अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा क्या गया, AD dot AC equal to AB square. Now similarly in the other two triangles, triangle BDC and angle ABC, both I have drawn here BDC because D is the right angle and in the triangle ABC B is the right angle, and here you can see that in triangle BDC angle C and in triangle ABC's angle C is common. So I have drawn such like that there will be no confusion. So in angle BDC and angle ABC, both angles are similar. So again by BPT the ratio of the corresponding sides are equal. So BDB DC upon BC and DC upon BC equal to
BC अपॉन AC, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो DC डॉट AC ये मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू BC का स्क्वायर, राइट. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ एडिंग दो बोथ इक्वेशन 1 and 2 हमने ऐड कर दिया. AD डॉट AC प्लस DC डॉट AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. देखिए यहाँ पर देखिए A स्क्वायर AD डॉट AC BC डॉट DC डॉट AC और इक्वल की दूसरी साइड में AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट. इसमें AC कॉमन आ गया, सो बच गया हमारे पास में AD प्लस DC और ये हमें सेम ऐसे रहनी चाहिए. अब क्या हो जाएगा, AC का हमने यहाँ दिया AD प्लस DC. अगर हम स्पीकर में देखें AD प्लस DC दैट इज इक्वल टू AC, सो हमने इसकी जगह AC लिखे. ये हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. दैट इज द proof that we have to prove. It is this, right. Now opposite of this Pythagoras theorem, next theorem is 6.9 according to our textbook. Now in this theorem, in a triangle if square of one side is equal to the sum of the square of other two sides, then the angle opposite the first side is the right angle, right. नहीं, that means हमें अगर हमने ABC कोई ट्राइंगल है, राइट, और इस पे जो स्क्वायर बनेगा, जो ये गिवन है हमें, जिस पे जो स्क्वायर बनेगा वो इन दोनों के स्क्वायर के इस साइड पे और इस साइड पे जो स्क्वायर बनेगा उनके सम के इक्वल होगा, राइट. तो हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल B है दैट इज 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है. और ये हमें गिवन है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अब हम इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में करेंगे. तो कंस्ट्रक्शन में हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल PQR, in which Q is at right angle and PQ is equal to AB and RQ is equal to CB और BC, राइट. ये मैंने यहां पर लिख दिया है, राइट. अब हमें प्रूव करना है. तो अगर हम इसको B को प्रूव, ये B 90 डिग्री, ये हमें ये इस वाले एंगल के लिए हमें 90 डिग्री करना है. ये और ये हमने कंस्ट्रक्शन में कर रखा है कि ये Q क्या है, 90 डिग्री का एंगल है और PQ इज इक्वल टू AB एंड QR इज इक्वल टू BC, राइट. अब हम यहां से ये कब होगा, जब हम दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे. सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, राइट. इन देखिए AB इन दोनों ट्राइंगल में, देखिए ये दोनों ट्राइंगल में क्या है. अगर हम ABC में है, ABC में हमें क्या गिवन है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई. सेकंड में अगर हम यहाँ पर राइट एंगल है, तो यहाँ पर जो हाइपोटेनस है दैट इज PR. सो PR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस RQ या QR स्क्वायर, राइट. दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट. अब देखिए, अब सिंस हियर यू कैन सी दैट इसमें भी क्या है, क्योंकि हमने PQ इक्वल टू AB ले रखे हैं, तो हम इसकी जगह ये भी कर सकते हैं, PR स्क्वायर इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, PQ की जगह हमने क्या रखा है, AB क्या है, AB का स्क्वायर प्लस QR की जगह हमने BC का स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सिंस हम ये ले सकते हैं, सिंस PQ इक्वल टू AB एंड QR इक्वल टू BC, राइट. अब हम ये तो हमने पास में हो गए. सो हम इक्वेशन नंबर 1 and 3 को कंपेयर करेंगे. देखिए, कंपेयरिंग 1 and 3, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 3 कंपेयर करेंगे तो दोनों को राइट हैंड साइड इक्वल है. दैट मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, राइट. एंड
AC इक्वल टू, सो AC इक्वल टू क्या हो गया, PR, ठीक है। अगेन सॉरी, ये हो गया, इवन AC स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, और AC इक्वल टू PR। अगेन एन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, देखिए इन दोनों में देखिए AB इक्वल टू PQ, राइट, BC इक्वल टू QR, राइट, एंड नाउ इससे जो अभी हमने किया था AC इक्वल टू PR, राइट। अब ये ऑल साइड्स आर इक्वल। नाउ ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR by SS congruency rule, राइट। बाई क्या हो गया, SS congruency rule से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल B इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री बाय CPCT, राइट। ये हमें प्रूव करना था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अभी देने वाला हूँ, होप सो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू।